A very good morning, everyone. Here we are in the last few classes of business studies. We are on the chapter number 1. We have already discussed about the classification of business activities into two parts. Number 1 was industry and number 2 was commerce. We have covered the topic of industry in our last week only. We have covered that industrial activities can be divided into three parts. That is the primary industry, the secondary industry, and the tertiary industry. Yesterday, we have discussed about the meaning and functions of commerce. Have a look. We have discussed the classification of commerce, part 2 of business activity. And commerce basically involve all the activities that help directly or indirectly in distribution of goods to the ultimate consumers. This part we have covered. Then we have discussed the first category of commerce, that is trade. अभी तक हमने यही पढ़ा था. Commerce की 6 functions we have discussed, that it helps in removing the hindrance of persons, the hindrance of place, the hindrance of time, the hindrance of exchange and the hindrance of risk and knowledge. ये हमने पढ़ लिया था already, right? अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. कल हमने ट्रेड भी पढ़ लिया था. इसके अलावा इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, internal within the geographical boundaries of a nation and external beyond the geographical boundaries, right? अब आज का टॉपिक देखिए, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अगर हम बात करें कि ट्रेड को सपोर्ट कौन कौन करता है, तो वो सपोर्टर्स की आज हमें यहाँ पे बात करनी है. सपोर्टर्स टू ट्रेड में हैव अ लुक. गिव मी अ सेकेंड. Yes, supporters to trade. We have already discussed that the tertiary industry, जो जो चीजें उसमें आती है, all those activities will be covered in the aids of trade part, right? Auxiliaries to trade वही सारी चीजें हैं जो service sector में आता है. Have a look what is written over here. The activities which help in smooth flow of trade are known as aids to trade. Aids to trade किसको कहते हैं? उन सभी activities को कहते हैं जो trade को easy बना देती है, जिसमें trading easy हो जाती है. Now, these activities are also known as services and together constitute the service sector or tertiary sector of commerce. यानी यही वो services है जो मिलके service sector बनाती है. Service sector की अगर हम बात करें तो service sector aids to trade से ही बनता है. क्या क्या था सर्विस सेक्टर में? Who will tell me? Which type of services were there? Raise your hands. आपने क्या क्या सुना था? कौन कौन सी सर्विसेज सुनी थी? Yes. Anyone else? Only these students. What about the others? Okay, Pankaj will tell us. Yes, Pankaj. Like banking, advertisement, transportation, communication, and so on. Yes, banking, transportation, advertising, communication, warehousing, and so on. Right? ये सारी जो चीजें थी ये किसमें आई थी? इन सब ने मिलके हमारे सर्विस सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया था. और क्या हमने कल इनको वहां भी पढ़ा था? We have discussed it in the functions of commerce that transportation branch of commerce help in removing the hindrance of place. Right? Then we have discussed that trade branch of commerce help in removing the hindrance of persons. फिर हमने पढ़ा था the warehousing branch of commerce help in removing the hindrance of time. Banking branch help in removing the hindrance of exchange. Insurance help in removing the hindrance of risk and advertising help in removing the hindrance of knowledge. तो ये 5 aids to trade है. स्क्रीन पे देखिए, एक छोटा सा एडिशन हो गया है. वैसे तो एडवर्टाइजिंग में ही कम्युनिकेशन इंक्लूडेड होता है, बट हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है. तो मैंने आपके यहाँ जो हेडिंग्स लिखी है, दीज हेडिंग्स आर एज पर योर बुक ओनली. क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयरहाउस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. ओके, अभी मैंने इनके बताया था, कॉमर्स से फंक्शन से लिंक करके बताया था. वंस अगेन यू आर सपोज टू टेल मी द आंसर. बैंकिंग ब्रांच ऑफ एड्स टू ट्रेड कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? कौन सी प्रॉब्लम है जो बैंकिंग ब्रांच ने सॉल्व आउट की है? यस करण. मैम एक्सचेंज ऑफ फंड्स. Yes, problem of exchange of funds. You guys tell me the next one. Which branch has no warehouse has solved the problem of
Ma'am, it's create the utility of the product. Yes, but what will we call exactly the problem? Problem of like place, exchange, time. कौन सी problem solve करता है? I think time. Yes, you think time, you think right. Problem of time. Okay, Kirti. Tell me which problem is solved by insurance? Problem of business risk. Problem of business risk. Very good. Yes, Pankaj, tell me which problem is solved by advertising? Okay, there is some audio problem. Advertising branch helps in solving the problem of knowledge. अब इनके बारे में basic छोटी-छोटी बातें लिखी. Insurance, what is it? It is related with providing compensation for risk people have to suffer. बिजनेस का एक असेंशियल पार्ट होता है रिस्क. हमने चैप्टर 1 जब अभी हम कर रहे थे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट पॉइंट था अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, राइट? So we have to face various types of risk and many of them are insured. And when we get an insurance against the risk, then we get a protection that anytime if we suffer any losses due to business risk, then our losses will be recovered by the insurance company. Okay. Next, advertising. There is a problem that consumers don't know about the product. So advertising branch helps in informing the consumers. We inform the consumers about the types of goods and services that are produced by a producer. Transport moves raw materials, equipment, finished products whenever they are needed. अब ध्यान रखिएगा स्लाइड में तो ये नोट्स के फॉर्म में गिवन है. आपको जब एग्जामिनेशन में आए तो आपको प्रॉपर लिखना है. There is a problem of time gap which makes trade difficult. So this problem is solved. Sorry, मैंने time बोल दिया है, place gap होगा. This problem is solved out by the transportation branch of commerce, and transportation as a aids to trade moves goods from one place to another. इतना सा लिख दीजिए बस, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. कम्युनिकेशन अलग अलग कर दिया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने. Communication, with the help of communication, traders exchange information and maintains contact with one another. If I want raw material, then I will be giving order to my supplier at least 1 week before so that he can supply me. So this information will be given to him by using the communication branch as a aids to trade. Right? Without communication, I can't give information to any of my traders. आप सोचिए अगर मैं out of the स्टेट से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हूँ और मैं वहां पे इमीडिएटली लेने पहुंच जाऊं, इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हो सकता है मेरे सप्लायर के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो जिससे मेरा टाइम और रिसोर्स दोनों वेस्ट हो जाए. नाउ वेयर हाउसिंग, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज फॉर गुड्स अंटिल नीडेड. जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आप स्टोर करके रख दीजिए. बैंकिंग एंड फाइनेंस मनी अवेलेबल करवाता है अलग अलग स्टेजेस पे. प्रोडक्शन की जितनी भी स्टेजेस हैं उन पे जब जब आपको पैसा चाहिए होगा वो कौन अवेलेबल करवाएगा? बैंकिंग ब्रांच अवेलेबल करवाएगा. ये हमने कंप्लीट कर लिया है एड्स टू ट्रेड. अब आप देखिए एक एक सेक्टर की इंपॉर्टेंट बातें है यहाँ पे. बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है? लोन्स एंड एडवांसेस देता है. लोन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. टर्म लोन्स हो सकते हैं. क्या होते हैं चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. कैश क्रेडिट क्या होता है चैप्टर 4. ये पूरा एड्स टू ट्रेड चैप्टर 4 में आएगा. बैंकिंग क्या है, इंश्योरेंस क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है. वेट फॉर अ सेकंड. यस, तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में. ठीक है, आगे देखिए क्या विजिबल है आपको स्क्रीन पे. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड्स का मूवमेंट करवाना और एक दूसरे से बात करना. मॉडर्न कम्युनिकेशन कौन सा होता है? मोबाइल फोन वाला, ईमेल वाला, है ना. अब हमें पहले क्या होता था, पहले मेल सेंड की जाती थी और उससे भी पहले लेटर्स सेंड किए जाते थे. अब तो हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इंटीमेशन दे देते हैं और सामने वाले को इंफॉर्मेशन मिलती है. ये देखिए, here is the image of warehouse. ये एक वेयर हाउस की इमेज है, गोडाउन की इमेज है जहां पे आपको कार्टन्स नजर आ रहे हैं. तो ये स्टोर करके रखने के लिए होते हैं गुड्स को. वेयर हाउस गुड्स के टाइप के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस. इंश्योरेंस ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस रिस्क है. इस रिस्क को कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंश्योरेंस चाहिए. नेक्स्ट अगर हम देखें
एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, टीवी से ऐड दे दो, आजकल तो मोबाइल फोन पे कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाओ, पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी। आपको नया गाना सुनना है यूट्यूब पे, फर्स्टली यू हैव टू सी द एडवर्टीजमेंट, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट का। कोई गेम आप देख रहे होंगे तो उसमें दूसरे अलग अलग एप्स का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, आप फ्लो चार्ट बनाने में मेरी हेल्प करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। वन बाय वन यू हैव टू रेज योर हैंड्स एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट शुड आई राइट। सबसे पहले आई एम राइटिंग बिजनेस एक्टिविटी, बहुत छोटा लिख रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूँ। चलिए 2 कैटेगरीज, क्या क्या लिखूं यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए, हु विल टेल मी। Okay, this is not satisfactory position, only few students। ये तो आप सबको पता है। Yes, कीर्ति। Ma'am, industry, commerce. Industry and commerce. Okay. For once, I am allowing you to unmute yourself, but make sure वही बच्चा अनम्यूट करेगा जिसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया होगा, राइट। जिसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो आंसर अनम्यूट करके आंसर देगा और खुद से अपने आप को म्यूट कर लेंगे आप। ओके, 2 parts. Number 1, we can say industry where production activities are undertaken. Number 2, we can say commerce, which is related with procurement of goods. Okay. Now, how many parts of industry are there? Who will tell me? Be quick. You don't have to mention the name. आपको तो सिर्फ इतना बताना है कितने parts है। Yes, Yugansh. How many categories? Unmute yourself. Yes, beta, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, industry के ना primary, secondary and tertiary. 3 categories. Very good. Primary, secondary, and tertiary. Okay. Next, Himanshu, will you tell us the categorization of primary industry? Industry के 3 part होते हैं, primary, secondary, and tertiary. Will you tell us in how many parts primary industry can be categorized? 2 parts. Be quick, unmute yourself. 2 parts. 2 Can parts. you name them? Genetic and extractive. Genetic and extractive. Very good. Mute yourself. हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं एक बार इंडस्ट्री, क्योंकि स्पेस हमारे पास उतना ही है। 3 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। नंबर 1, प्राइमरी इंडस्ट्री, जैसा कि युगांश ने बताया, which can be divided into 2 parts, genetic and extractive. Okay. Number 2, secondary industry. How many parts? Yes, Shubhangi. Ma'am, 2 parts. Again 2 parts. and Very good. Mute yourself. Yes. Manufacturing and constructive industries. Manufacturing industries and constructive industries. Okay. Tertiary industry. How many parts? Yes. Who will tell me? Yes, Karan. Ma'am, 5 parts. 5 parts. Can you name them? Yes, ma'am. Ma'am, those are banking, insurance, communication, warehousing, transport. Yes. This much. Yes. Banking, insurance, communication, warehouse and transport. Manufacturing की भी 4 categories होती है, assembly, synthetic, processing and analytical industries. Okay, तो industrial part complete हो गया है। Commerce की अगर मैं बात करूं तो commerce can be divided into how many heads? जल्दी बताइए। ऐसे नहीं चलेगा, only few students are ready to give the answers. Yes, Manasvi, unmute and speak. Ma'am, trade and aids to trade. Yes, very good. Commerce can be divided into 2 categories. Category number 1, trade. Category number 2, aids to trade. Okay, very good. How many parts of trade are there? Who will tell me? Ghazal, tell us the types of trade, the categories in which trade activities can be divided. Unmute yourself. Ghazal, unmute yourself. Hello.
चलिए, गजल ने अनम्यूट नहीं किया है। जानवी खत्री, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, beta. In how many categories we can divide trade? Be quick. You don't know the answer? No issues. Yes, Shubhangi will tell us. Yes, Shubhangi. There are two parts, internal trade and external trade. Very good. There are two parts, internal trade and external trade. Okay. Manaswar, tell us the categories of internal trade. Ma'am, wholesale trade and retailer trade. Very good. Wholesale trade and retail trade. Okay. Kirti, tell us the categories of external trade. Ma'am, export and import. One more, beta. Export, import, and re-export. Export, import, and re-export. Okay? Okay, ma'am. Yes. Now let's categorize aids to trade. अभी पढ़ा है हमने, आज के टॉपिक में पढ़ा है aids to trade की categorization. 5 things क्या क्या है अभी पढ़ते हैं हम. Who will tell me? Yes, again Pankaj will give the answer. Yes, Pankaj, be quick. Pankaj, you can unmute yourself. Okay, again Yugansh will give the answer. Yes, Yugansh. Ma'am, transport, banking, insurance, warehousing, advertising. Yes, transport, banking, warehouse, advertising and insurance. These are the categories of aids to trade. चलिए, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम सिर्फ उसके बारे में उसका जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करके उसका नेचर पढ़ेंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज बिजनेस रिस्क. हमारा जो एकदम लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, दैट इज बिजनेस रिस्क. बिजनेस में वी हैव टू फेस रिस्क और हम देख रहे हैं रिस्क का क्या मीनिंग होता है. देखिए, पहले आप में से कौन बता रहा है व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ रिस्क. आप क्या समझते हैं रिस्क से? अगर मैं आपको कहूं कि रिस्क है तो वो रिस्क का क्या मीनिंग है आपकी लैंग्वेज में? यस करण, अनम्यूट एंड स्पीक. मैम, यहाँ पे रिस्क का मीनिंग मैम हमें लॉस होना है. इन्वेस्टमेंट जितना किया उतना हमको वापस गेन नहीं होना, प्रॉफिट नहीं होना. बिल्कुल, किसी भी तरीके से लॉस हो जाना रिस्क है. राइट. अगर मेरी कोई बुक फट जाती है या फिर चोरी हो जाती है, फटना तो उतना बड़ा रिस्क नहीं है, छोटा सा लॉस है. अगर चोरी हो जाती है तो इट इज अ काइंड ऑफ रिस्क. राइट. अब बिजनेस में देखिए रिस्क का क्या मीनिंग है, बहुत ध्यान से देखना. बिजनेस रिस्क का मीनिंग है चांसेस ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटी. फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से जब भी लॉस के चांसेस हम फेस आउट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं. अब अभी देखिए, हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक से थोड़ी सी डिफरेंट जिसको लर्न करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम कुछ डिफरेंट लिख के आएंगे. हैव अ लुक, लर्न करते हैं. बिजनेस रिस्क रेफर्स टू chances of, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू चांसेस ऑफ, किस चीज के चांस? 3 चीज के. 3. नंबर 1, नो प्रॉफिट. हमें कुछ भी प्रॉफिट ना हो. कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी कॉस्टिंग आती है उतने में ही सेल आउट करना पड़ता है, उसे कहते हैं सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट. और वी कैन से लो प्रॉफिट. लो प्रॉफिट मींस हमने जितना एक्सपेक्ट किया उससे कुछ कम प्रॉफिट हुआ, या फिर लॉस. ये तीनों तरीके के जो रिस्क होते हैं उसको हम ये तीनों जो चांसेस होते हैं इन चांसेस को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं. बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द चांसेस ऑफ नो प्रॉफिट, लो प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटी. आई एम रिपीटिंग, बिजनेस रिस्क, आप भी रिपीट कीजिए साथ साथ में. बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द चांस ऑफ नो प्रॉफिट, लो प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटी. इन तीनों के जो चांसेस है वही बिजनेस रिस्क है. अभी देखिए,
नो प्रॉफिट क्या होता है, लो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, उसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। गिव मी 1 सेकेंड, आई एम शेयरिंग द स्लाइड विद यू, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नो प्रॉफिट किसे कहेंगे। Have a look. Here is the definition of business risk in front of you. पहले तो ये देखिए, रिस्क बिजनेसमैन के पीछे पीछे चलती रहती है, जहां जहां बिजनेसमैन जाएगा वहां वहां रिस्क उसको कवर करेगी। ये रिस्क कभी तो हमें लॉस देके चली जाती है, कभी हमें कुछ गेन भी होता है। लॉस गेन चलता रहता है, बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। ये आपको इन चार्ट से पता चल रहा है। अभी देखिए बिजनेस रिस्क का मीनिंग देखिए, ये जो मीनिंग अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। Business risk refers to chance of 3 things: low profit, no profit or loss due to future uncertainty. ये no profit, low profit और loss क्या है? क्योंकि फ्यूचर, देखिए नो प्रॉफिट क्या होगा या लो प्रॉफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा। Suppose I have produced good eggs for ₹100, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है ₹100। I have planned to sell it out at ₹130. मैंने क्या सोचा कि मैं इसको 130 पे सेल आउट करूंगी। मैंने प्रोड्यूस किया कितने पे, 100 पे, एंड आई थॉट दैट आई विल बी सेलिंग द कमोडिटी एट ₹130। बाय चांस सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है इसको सेल करना था 130 पे, बट मेरे पास हाईएस्ट जो कंज्यूमर आया वो 110 का आया, यानी हाईएस्ट 110 रुपीज पे मेरा कंज्यूमर कमोडिटी को परचेज करने के लिए रेडी हो रहा था। कैन आई कॉल द सिचुएशन एज अ सिचुएशन ऑफ लो प्रॉफिट? बताइए मुझे। I have expected a profit of ₹30, whereas I have earned only a profit of ₹10. Can we call it a situation of low profit? Definitely yes. This is the first part of business risk. Number 2, have a look. Suppose I have planned that I will be selling the commodity at ₹130, but by chance I am selling the commodity only at ₹100. कस्टमर आया ही नहीं, 110 का भी नहीं आया, 105 का भी नहीं आया। अब 100 रुपीज में एक कस्टमर आया कि भैया 100 पे लेना चाहते हैं, आप दे रहे हो क्या? एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा देना चाहेगा। क्यों देना चाहेगा? नहीं देगा तो 100 का लॉस, वो सारा प्रोडक्ट रह जाएगा, और अगर देगा तो एटलीस्ट उसको सो हैव अ लुक। 100 पे दे दिया तो वी विल कॉल इट अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट। अब आगे आ जाइए, 130 की प्लानिंग की थी, 100 तक के लिए भी वेट किया, बट कस्टमर नहीं आया। आप बताइए, आफ्टर फ्यू टाइम्स आपके पास एक कस्टमर आता है 80 रुपीज का, कौन कौन सेल आउट करेगा? 100 तो आपकी कॉस्टिंग आ रही है, लेकिन कस्टमर आपके पास आया है हाईएस्ट 80 रुपीज का। Who will be selling out the product? Only 2 students. Okay. Some of the students are willing to sell the product which is of 100 rupees. You are ready to sell it at 80 rupees, right? Okay, tell me why you are ready to sell it at a loss. Yes, Yugansh. मैम बिकॉज उसको ऑलरेडी प्रोडक्ट को इतना टाइम हो गया, और रखेंगे तो और वैल्यू गिरेगी, इससे अच्छा सेल आउट कर दो। 20 का लॉस उठा लेंगे तो आगे अपन गुड्स और खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली अभी अगर लॉस बियर किया तो मे बी केवल 20 रुपीज का ही बियर करना पड़े, थोड़ा सा और वेट करोगे तो वैल्यू विल फॉल डाउन, और हो सकता है आपका लॉस इंक्रीज हो जाए। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम्स आपने फेस की, द प्रॉब्लम ऑफ नो प्रॉफिट, द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रॉफिट एंड द प्रॉब्लम ऑफ लॉस, दिस इज ट्रीटेड एज बिजनेस रिस्क। और ये सारी की सारी रिस्क किसकी वजह से है? दिस इज बिकॉज ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, वरना आपको ये रिस्क फेस आउट नहीं करना पड़ता। अब आगे देखिए, ये मीनिंग किस किस को लर्न हो गया है, कौन कौन सुना सकता है? रेज योर हैंड्स, बी क्विक। स्क्रीन से हटा दिया मैंने। Who all can tell me the meaning of business risk? Raise your hands.
पार्टिसिपेशन रेशियो देख लीजिए। यस कीर्ति। मैम क्या है क्वेश्चन मैम? क्वेश्चन मैम है, you have to tell me, wait for a second, you have to tell me the meaning of business risk। अभी तो कीर्ति सुना रही है। यस कीर्ति। मैम आपने स्क्रीन से हटाया ही नहीं अभी तक। हटाया ही नहीं? हटा तो दिया मैंने, रिस्क की फोटो लगा दी आपके लिए। हट गया क्या? यस मैम। मैम बिजनेस रिस्क रेफर्स टू नो प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, सॉरी नो प्रॉफिट, लो प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू Chances of no profit। uncertainty of Yes, future। yes. Chances of no profit, low profit or loss due to future uncertainty is known as business risk, right? एक और डेफिनेशन यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, इसको देखिए जरा। बाकियों से रुक के सुनेंगे, पहले आप एक और डेफिनेशन देखिए। Business risk refers to the probability of loss or inadequate profit due to uncertainties or unexpected events which are beyond the control। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। बिजनेस रिस्क का मतलब है लॉस की या इनएडिक्वेट प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं। इनएडिक्वेट यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ कम। और ये सारा होता क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेन इवेंट्स है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उन अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से जो भी लॉसेस हम फेस आउट करते हैं वही बिजनेस रिस्क का पार्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ रिस्क मे बी न्यू बुक में ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपको समझना है। दो तरीके की बिजनेस रिस्क हम फेस करते हैं। नंबर 1 इज स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड नंबर 2 इज प्योर रिस्क। आज का लास्ट टॉपिक है ये, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। हैव अ लुक। स्पेक्युलेटिव रिस्क कौन सी होती है? ऐसी रिस्क जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड अ लॉटरी टिकट फॉर ₹5,000। मैंने परचेज कर लिया। अब मैंने ये परचेज कर लिया, अगर मेरा लकी ड्रॉ निकलता है, लॉटरी टिकट निकलती है, तो मुझे 5 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। कितने? 5 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। अब आप बताइए, अगर मेरा लॉटरी टिकट निकल जाता है तो मुझे गेन हो जाएगा। आई विल बी एबल टू अर्न 5 लाख। एग्जैक्टली बात करें तो 4.95 लाख। क्यों? क्योंकि 5 तो हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं, 5,000 तो। और अगर टिकट नहीं निकलती है तो मुझे लॉस हो जाएगा 5,000 रुपीज का। जो मैंने उसकी परचेजिंग पे लगाए हैं वो अमाउंट मेरा जो है वो डूब जाएगा। तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क की सिचुएशन। हमने बिजनेस में जितने भी गुड्स परचेज किए उस पे ये दोनों एप्लीकेबल है। अगर वो गुड्स सेल आउट हो जाते हैं प्रॉफिट पे तो हम गेन करेंगे, और अगर सेल आउट नहीं होते हैं तो हमें लॉस फेस आउट करना पड़ेगा। तो ये है एग्जांपल स्पेक्युलेटिव रिस्क का, वेयर वी आर हैविंग बोथ द ऑप्शंस। हम क्या कर सकते हैं, हमें गेन भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क सुनिए जरा, ये ऐसा रिस्क है जहां सिर्फ लॉस के चांसेस है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता है, केवल और केवल लॉस के चांस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बिजनेस में आग लग जाती है तो मुझे लॉस हो जाएगा, बट अगर आग नहीं लगती तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट थोड़ी होगा। नो, प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, सिर्फ उसी एक्टिविटी का रिटर्न मिलेगा जो मैं जनरली परफॉर्म करती हूँ। तो द रिस्क वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ profit as well as loss is known as speculative risk, whereas the risk where there are possibilities of only profits are known as, sorry, only loss are known as pure risk. Have a look. Speculative risk, it involves both possibility of gain as well as possibility of loss। मुझे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मेरे जो गुड्स हैं जो पड़े हैं यहाँ पे सेल आउट करने के लिए, उनकी वैल्यू। प्योर रिस्क क्या है? सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इसमें फायदा कुछ भी नहीं है। अगर आग लग जाती है तो नुकसान होने के चांसेस है, आग नहीं लगने से मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मैंने कहीं अपना व्हीकल पार्क किया, व्हीकल चोरी हो जाता है तो मुझे लॉस हो जाएगा। व्हीकल चोरी नहीं होता है तो मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये प्योर रिस्क है। यहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी है लॉस की या नो लॉस की, जैसे कि आग लग जाने का डर, चोरी का डर, वर्कर्स के स्ट्राइक करने का डर। Anyone, any doubt? The speculative risk and pure risk is not explained in the latest edition. You have to note it down in your notebook. You have to prepare notes for this part. Today we have discussed two topics. Topic number 1, auxiliary
Auxiliaries to trade, right? Aids to trade को हमने डिस्कस किया था, क्या क्या aids to trade थे वो पढ़ लिया. Number 2, we have discussed the meaning of business risk and we have discussed the two categories of business risk, speculative risk and pure risk. अभी हमारे केवल 2 टॉपिक्स बचते हैं चैप्टर नंबर 1 में. टॉपिक नंबर जो नेक्स्ट हम कल करेंगे वो है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, और उसके बाद जो टॉपिक करेंगे दैट इज द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ह्यूमन कॉजेज, फिजिकल कॉजेज, वो हम कल पढ़ेंगे. यस युगांश, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. मैम ये जो आग लगना और अर्थक्वेक ये तो सिर्फ नेचुरल कॉज में आ गया ना? हाँ, नेचुरल में से ही कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो प्योर की कैटेगरी में आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेक्युलेटिव की कैटेगरी में आते हैं. ये 2 एक्स्ट्रा कैटेगरीज है जो यहाँ पे हमने पढ़ी है. इज इट ओके? मैम नेचुरल में कैसे और नेचुरल में आग लगना नेचुरल में हो सकता है समटाइम्स. इसको हम डिस्कस करेंगे कल डिटेल में, ठीक है? ओके. इज इट ओके? यस मैम. Yes, wait for a second. Yes, Yugansh. Karan, you can mute yourself. Yes, Yugansh, you can speak. मैम कैरियज ऑफ गुड्स क्या होता है? कैरेज ऑफ गुड्स का मतलब होता है जो किराया लगता है. हम जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो जो रेंट लगता है वो होता है कैरेज. ओके मैम. Yes, Shubhangi, you can unmute and speak. मैम मेरी बुक में टाइप्स ऑफ रिस्क के दो और हैं टाइप मैम, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क. Beta, which book you are having? मैम आई एम हैविंग दिस वीके. Okay, beta, we will be discussing it also. Latest edition or the old edition? नो मैम, ओल्ड. Yes, we will discuss these 2 categories also. Is it okay? In latest edition, we are having only 3 topics. We are having meaning of business risk, then the nature of business risk, and then 4 causes of business risk. So most probably tomorrow will be the last class of the main topics of chapter number 1. Make sure that you have to revise and recall all the topics. I will be taking a basic oral test in our next class. Till that, enjoy yourself, stay safe and stay healthy. Have a nice day, everyone. See you tomorrow.